Okay, so today we will be starting off with international relations. International relations consists, it is a 200 marks exam. So first of all, whenever we are talking about a particular subject, so we have to also look at the different theories of international relations. But before that, we will be starting off with a definition. So IR basically allows nations to cooperate with each other. First thing is what? Cooperate with each other. Second is pool resources and share information as a way to face global issues that go beyond any particular country or region. Now, what are those issues? The issues are such as terrorism, pandemic, environment, etc. that are global issues. So, in order to solve global issues, what the nations are doing, they are cooperating with each other. First thing, they are pooling resources and they are sharing information so that they are able to globally solve the issues. So as with any subject, what we have to do, we have to look at different definitions mainly. So when we have talked about international relations, so one of the things that we will be talking about mostly in international relations, that what nations are doing externally, and when we are looking at the external environment, we are talking about what is the foreign policy of a country. Okay, what is a foreign policy? The foreign policy is basically the decisions government authorities make to realize international goals. So these are what decisions that made by government. that the governments make to realize international goals. So similarly, the foreign policy should be based on the understandings, should be based on the dynamics of the country as well, their cultural policies, and primarily what it should be consisting of, it should be consisting of, and it should be taking care of all the actors or all the stakeholders that are involved. Right now, what is an actor? The first terminology that I use. Who is an actor? जैसे एक्टर क्या हो सकता है? मैंने मिस कर दिया आपका सेंटेंस, सॉरी। ये एक्टर वाला सेंटेंस क्या था आपका? मैं कह रहा हूँ अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, राइट, इट अफेक्ट्स एक्टर्स. So who is an actor? दो तरह के एक्टर्स होते हैं, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स के, जो आपके स्टेट के फंक्शंस वगैरह हैं. सही. So individual, right, group, actor can be anything, group, state or organization which plays a major role, right, in the world. मेजर रोल. जो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है आपका, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सही है, वो आपके क्या है, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है. जो भी स्टेक होल्डर्स है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है. ठीक है. So when we have talked about actors, so what we have to look for, we have to discuss what is world politics. So world politics basically follows accepted legal conventions about distinctions. क्या मतलब? वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो हम बात करते हैं वो करते हैं, एक है पावर. ये क्या है पावर? ताकत भाई, जिसके पास जो लॉबी करेगा, जो, ठीक है, ताकत है. ये फाइनेंशियल पावर भी हो सकती है, मिलिट्री पावर हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल पावर हो सकती है. सही. तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम इसके हिसाब से बात करें, आईआर के हिसाब से, तो पावर क्या है? द पावर ऑफ वन एक्टर. कोई भी है ना, इट कैन बी अ ग्रुप, इंडिविजुअल, स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है. सही. टू मैनिपुलेट अनदर ग्रुप्स बिहेवियर. to manipulate another group's behavior अगेंस्ट देयर प्रेफरेंसेस. यानी जो उसकी प्रेफरेंसेस है उसके खिलाफ उससे कोई चीज करवा दी जाए. फॉर एग्जाम्पल, हर स्टेट के अंदर क्या कहा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये हो वो, लेकिन हर स्टेट की अपनी एक पावर है, अपनी एक, जैसे यूएस सबसे पहले क्या बात करता है कि भाई प्रोटेक्शनिस्ट बन जाएगा, चाइना के अंदर बैन कर देगा,
इस चीज को ये कर देगा, फिर वो अपना फॉरेन पॉलिसी का इन्फ्लुएंस अपनी पावर एक्सर्ट करके उसने अभी यूके से भी कैंसिल करवा दिया ना उसका। बिल्कुल। तो वो पावर गेम किया ना। पावर कैसे किया कि अगर इरिस्पेक्टिव के भले यूके वाले चाहते हो हवा भी उनको चीप मिल रहा हो, 5G टेक्नोलॉजी, हर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर है ना आजकल, तो देसी टेक्नोलॉजी की। Instead of all that, due to the power, due to the close relationships, they have to change their preferences. ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट की। What is an state? यहाँ पे मैंने कहा कि स्टेट है। स्टेट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट मशीनरी ऑफ अ कंट्री जो डोमिनेंट, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट मशीनरी डोमिनेट कर रही होगी उस कंट्री में। स्टेट हैज 4 मेन कंपोनेंट्स, सही। एक है गवर्नमेंट, ठीक है। 4 पिलर्स कह रहे हैं, 4 पिलर्स ऑफ स्टेट। नहीं, पिलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक है लीगल एंटिटी, एक है पॉपुलेशन और एक है टेरिटरी। टेरिटरी, सही। So basically what is a state? An independent legal entity with a government exercising exclusive control over the territory and the population it governs. ठीक है, गुड यार, बड़ी प्यारी डेफिनेशन निकाली है। हाँ, क्या कह रहे हो? ये फिर से जरा डेफिनेशन बड़ी प्यारी निकाली है स्टेट की, अपनी बताइएगा जरा। State is an independent legal entity with a government exercising exclusive control over the territory and the population it governs. सही सही। ठीक हो गया। अब हम बात, State is an independent legal entity हाँ हाँ, where the government exercises a control, exclusive control over the territory and governs the population living within. हाँ, एंड पॉपुलेशन इट गवर्न, सही। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर नेशन की। नेशन क्या? Nation is a group of people who like एक सिमिलर कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे, कोई लैंग्वेज की बेसिस पे। ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसके मैं कह सकता हूँ कलेक्शन ऑफ पीपल भी कह सकता हूँ, या कलेक्टिविटी भी कह सकते हैं। बिल्कुल, कलेक्टिवली मतलब उनके बिलीव्स भी सेम होंगे जिस पर वो मैच करके अलाइन हुए होंगे। अच्छा, कलेक्शन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हु शेयर द सेम एथनिसिटी, या तो एथनिसिटी, कल्चर और लैंग्वेज। So basically the nation state, then what is a nation state? अब nation state तुम्हारे हिसाब से क्या चीज? नेशन स्टेट, So the term nation state basically implies a convergence between territorial states and the psychological identification of people within them. ये बात समझ रहे? नहीं, क्या है कन्वर्जेंस ऑफ? कन्वर्जेंस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स, जो हमारे टेरिटरीज है, जैसे सूबे हैं हमारे, और जो भी हमारे पास टेरिटरीज हैं डिफरेंट, एंड द साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल विद इन देम। सही है। मतलब नेशन स्टेट्स के अंदर अब अगर हम उसको तोड़ते जाए डिफरेंट, तो उसके अंदर क्या क्या निकल आएंगे? नॉन स्टेट नेशंस आएंगे, जैसे एथनिक ग्रुप्स है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर नेटिव अमेरिका की बात करते हैं, सही, यूएस के अंदर, सही है। सिक्स की बात करते हैं हम लोग इंडिया के अंदर, सही है। कर्ड्स की बात करते हैं हम लोग इराक के अंदर। तो ये क्या, ये डिफरेंट क्या है? एथनिक ग्रुप्स हैं, और ये डिफरेंट जो टेरिटरीज में रहते हैं, ये उसके अंदर अपनी पावर जो है वो एग्जर्ट करते हैं। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई।
अच्छा, अब आ जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर। तुमने बोला नॉन स्टेट एक्टर्स क्या क्या होते हैं भाई? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, वर्किंग कंपनीज हो सकती हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकता है। मतलब एक तो तीन आपने मेन बताया ना कि एथनिसिटी, कल्चर और लैंग्वेज पे मतलब अलाइन हुए हैं। हाँ हाँ वो इसके अलावा किसी और जैसे हमारे यहाँ आपको पता है रिलीजन पे भी अलाइन हो जाते हैं, फिर रिलीजन के बाद सेक्ट्स पे भी अलाइन हो जाते हैं। तो आई थिंक डिफरेंट एक्टर्स जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई कि वो इस तरह की डिफरेंट चीजों पे भी अलाइन हो सकते हैं। सही। तो पहली जो चीज हमने बात की नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर, वो क्या मैं कहता हूँ कि नॉन स्टेट एक्टर्स में सबसे पहले क्या आएगी? आईएमएफ, यूएन। ये क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स है। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या कहलाते हैं? आईजीओस, इंटर। नेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सही। तो एक है, दो चीजें हम लोग बात करेंगे ना। एक तो हम बात कर लेंगे एनजीओस की। अच्छा, एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सही। जैसे हम लोग बात करते हैं एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज जो है इन्वेस्ट करती है। सही। दूसरी हम लोग बात करेंगे आईजीओस की। आईजीओस के अंदर आती है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती है। इसके अंदर सारी आ जाती है, जैसे यूएन हो गई, ये सारी आ गई, जो कि आपके पास ग्लोबल जो है वो आपके ऊपर एग्जर्ट कर रहे होते हैं। जैसे ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे यूएन हो गई, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे ईयू हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गई, ये सब की सब इसी में आ जाती है। बात क्लियर हुई? ठीक हाँ। है। नॉन स्टेट एक्टर्स में आपके पास दो मेन चीजें, एक है एनजीओ, एक है आईजीओ। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर्स में एनजीओस हैं और आईजीओस हैं, सही। हाँ। तो अब इन सब चीजों से हमें क्या पता चला? इन सब चीजों से हमें दो बातें पता चली। हम कहते हैं कि जब फॉरेन पॉलिसी का हमने जिक्र किया, तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर किस किस की इम्प्लीकेशन है? इन सबकी इम्प्लीकेशन आती है फॉरेन पॉलिसी की, है ना? तो आती हैं यार। हाँ, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि सबसे पहले एक होता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। सही, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस है। ग्लोबल के बाद स्टेट और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस है। सही। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस। उसके बाद तुमने की पॉलिसी मेकिंग, और उसके बाद तुमने क्या लिया? फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। सही। उसके बाद तुमने क्या लिया? फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ले लिया। बात क्लियर हुई? हाँ बेहतरीन है। ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, स्टेट और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस, पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, सही है। और ये जो ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस है, इसके ऊपर भी किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? इसके ऊपर भी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस आपका पड़ ही रहा है। सही। हाँ, किसी और कंट्री की फॉरेन पॉलिसी, उसका इन्फ्लुएंस बनते बनते बहुत बड़ा ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना, उससे इन्फ्लुएंस ट्रेड और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो सही। द फैक्टर्स दैट शेप स्टेट्स फॉरेन पॉलिसीज एंड their decisions can be categorized at three basic levels. At the global level, structured features of the international system such as the prevalence of civil wars and the extended trade of interdependence. तीन लेवल के ऊपर हम तोड़ते हैं। सबसे पहले मैं तोड़ता हूं ग्लोबल लेवल के ऊपर। ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या चीज अफेक्ट करती है? एक तो वॉर्स हो गई, वॉर्स के अलावा सिविल वॉर चल रही है किसी दो कंट्रीज के बीच, ये हो गई, या फिर ट्रेड हो गई। ट्रेड के ऊपर हर कोई एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। स्टेट लेवल के ऊपर क्या है? इंटरनल और डोमेस्टिक इन्फ्लुएंसेस है, जो कि सिटीजन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कनेक्टेड स्टिक्स ऑफ द लीडर्स है, जिस तरीके से वो नैरेटिव को शेप करते हैं वो आ जाती है वहां पे बात। हाँ
सही है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अपनी कहानी बताई कि भाई ये जो है रियासत मदीना के हिसाब से हमने बात की गई ना, तो वो उस हिसाब से शेप की गई पॉलिसी। सही है, फेमिनिज्म तो हो गया, राइट्स हो गए, ये सब चीजें आती गई कि ग्लोबल ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस है। तुम कोई सी भी आर्टिकल्स पढ़ो तुम्हें वो बहुत ज्यादा मिलता जाएगा कि ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आई, सही है। पहले क्या था, फॉर एग्जांपल पहले क्या होते थे, वॉर्स होती थी, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, पावर जो सुप्रीमेसी थी वो क्या थी, मिलिट्री थी ना। मिलिट्री सुप्रीमेसी कहलाती थी हर चीज के ऊपर डोमिनेंस। सही है। अब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, और ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो गया, ट्रेड डिपेंडेंस। तो ट्रेड डिपेंडेंस हैज टेकन ओवर द मिलिट्री सुप्रीमेसी, और ट्रेड से मैं क्या बात कर रहा हूं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं। 2006 से पहले कौन इस चीज का अंदाजा लगा सकता है, बल्कि 2000 से पहले आप कौन ये अंदाजा लगा सकता है कि चाइना कैन emerge एज वन ऑफ द सुपर पावर? नहीं होता, क्योंकि नहीं, उस टाइम तो आइडिया वाकई नहीं हो रहा था। बिल्कुल ही नहीं था। क्यों? मिलिट्री सुपर पावर सुप्रीमेसी के ऊपर डिपेंडेंसी थी। लेकिन अब जो है शिफ्ट होते होते इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आ गया। देखो उनके पास चीप लेबर आज से क्या, चाइना के पास तो चीप लेबर शुरू से ही, चीप लेबर उनके पास शुरू से ही है। तो वो इम्पोर्ट तो सिर्फ वो चीजें करते हैं जो कि बिल्कुल ही प्राइमरी गुड्स है, जो भी बेसिक लेवल के जैसे फूड वगैरह के आइटम्स एसेंशियल हो सकते हैं वो करते हैं। वो भी उन्होंने सीड टेक्नोलॉजी और डिफरेंट तरीकों से वो भी उन्होंने अपना पूरा कर लिया है। अच्छा, नहीं तो उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल आइटम्स चाइना इंपोर्ट नहीं कर रहा क्या? टेक्नोलॉजिकल आइटम्स वो करते हैं, लेकिन वही है कि उससे जो सबसे पहले जो चाइना के ऊपर था, सबसे पहले हर कंट्री ये सोचता था, क्योंकि चाइना वाज के इमिटेट ही कर सकता है ये चीजें ना, अपनी इनोवेशन नहीं लेके आ सकता। चाइना के ऊपर सबसे बड़ा, अगर आप कहते हो कि चाइनीज कार्स वगैरह आप कुछ भी देख लो, तो क्या कहा जाता है कि चाइना जो है वो इमिटेट कर सकता है ना। क्यों? हाँ, इमिटेट। जाहिर है उसने कभी ये बताया तो नहीं, आपको इस बात का आइडिया भी नहीं हुआ कि उसने कभी रिसर्च के ऊपर कितना खर्चा किया चाइना ने। हाँ, कभी जिक्र भी नहीं करता, बताता भी नहीं है। वो बताता भी नहीं। तो आप तो कहते थे कि हम बादशाह रिसर्च R&D तो हमारा शोभ है, यूरोपियन कंट्रीज कहते थे हमारा है, यूएस कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज कहते थे कि ये हमारा है, R&D के ऊपर एक्सपेंडिचर इतना करते हैं, इतना बिलियन इतना बिलियन, इससे हमसे बड़ा कुछ है ही नहीं। लेकिन चाइना ने कहा कि भाई एक चीज थी जिसके अंदर इसको बीट नहीं कर पा रहे थे, वो क्या था, इनोवेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये उसके चाइना ऊपर बीट नहीं करवा रहा था ना। चाइना जो था वो इसके ऊपर कम्पीट नहीं कर पा रहा था ना, इनसे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं कम्पीट कर बिल्कुल पा। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ ये एक चीज थी, बाकी तो आप हर चीज में देख लो। एक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की एक और एग्जांपल ये है कि स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब जो चीजें हैं, ये सब किसके पास है अभी? इसका जो मेन होल्ड है वो यूएस से अपने पास रखा हुआ है। सही है। अब स्पेस के अंदर भी चाइना ने अपनी सैटेलाइट्स वगैरह भेजनी शुरू कर दी है। इसका पढ़ना, उनकी अपनी एक सैटेलाइट्स है जो कि मॉनिटरिंग करने के लिए, वहां पे भी स्पेस, जैसे स्पेस के अंदर भी वो डोमिनेंस हासिल कर रहा है। सेकेंडली चाइना क्या कर रहा है कि चाइना ने इनोवेशन जो 5G टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं हवावी के जरिए, उसके अंदर भी हासिल कर ली कि अभी तक तो ये चीज इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है, ना इसका कोई इम्कान अभी दिख रहा है। अगर होता तो एटलीस्ट दे वुड हैव अनाउंस इट। यूएस वगैरह कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ अनाउंस कर चुके होते अभी तक। बिल्कुल। ये तो वन ऑफ वैक्सीन से भी स्लो चल रहा है अमेरिका का 5G का। हाँ 5G तो कब से उन्होंने कहा कि भाई हम 5G कर रहे हैं, फिर उन्होंने एक पूरा केस खड़ा कर दिया वो कनाडा से जो कहानी स्टार्ट हुई। सही। अब हम बात करते हैं ग्लोबल सिस्टम। तो ग्लोबल सिस्टम क्या है? वैसे नूर भाई, आप सही बताएं, आपको लगता है कि जैसे चाइना पे इल्जाम लगता है कि भाई कि इसने इनोवेशन वगैरह में थीवरी की इमिटेट करके बनाया, बट अब जब ये गेम डाल चुके हैं 5G का, तो ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका इनोवेशन है कि चाइना कर तो चुका है, पर यार
यूएसए के पास भी बड़ा बंदा है, वो सब है, तो वो एटलीस्ट इमिटेट करके वो भी ऑल्टरनेटिव तो खड़ा करें ना, पैरेलल लाएं। भाई एक तो मतलब 5G जब आपने है, आपने एक चीज नोट की होगी ना कि अमेरिका जितनी भी रिसर्च करता है, अमेरिका का खुद का ब्रेन नहीं है, वो वहां के नेटिव जो गोरे बिठाए हुए हैं, शायद बहुत थोड़ा सा परसेंटेज उनका हो, बाकी वो जितना ब्रेन वो इंडियंस को ला सकता है, जितना इंडियन ला के भर सकता है फॉर थिंकिंग प्रोसेस वगैरह के, वही के इनोवेशन के डिफरेंट तरीके से सोचें, कोई R&D में मतलब ट्रायल्स वगैरह हो, तो वो सब तो कर लिया, बट एटलीस्ट कोई रिवर्स इंजीनियरिंग, बिल्कुल ये तो है, वो इतने हाई लेवल प्रोडक्शन करके के ये चीज है। वो तो उनका तो सबसे बड़ा जो गेम है, अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो उनका तो सिर्फ एक ही खेल है, वो कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात करते इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हैं। सिंपल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है कि आपने एक चीज बनाई, आपने कोई सी भी चीज है उसको इतना ज्यादा तुम बढ़ाओगे, बनाते जाओगे कि वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर आ जाती है, कि इससे ज्यादा वो लो हो नहीं सकती। लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर आप बना रहे हो क्योंकि आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग। तुम ये देख लो कि मास देख लो, सिंपल सी बात है कि मास वो कितने का बेच रहे हैं, वो तकरीबन कितने का देते होंगे, 8 रुपए का अगर वो देते हैं, क्योंकि 10 रुपए का यहाँ बिकता है, चलो 7 रुपए का वो देता है मास, सही है। एक सिंपल मिसाल लो कि वो 7 रुपए का मास्क है, अब वो 7 रुपए का मास्क यहाँ पे जो है मिनिमम मेरे ख्याल से 10 रुपए का बिक रहा है, 40 रुपए का बिक रहा है। अब वो 40 रुपए का बेच रहे हैं। यानी उसने वैल्यू एडिशन की, उसने वो मास्क बनाया, उसने वो सब कुछ किया। आपने 10 रुपए में भी बेच सकते थे, आपने उसको 40 रुपए में मोर देन 4 टाइम्स, 4 कह रहा हूँ, मोर देन 5 टाइम्स बल्कि आपने उसकी कॉस्ट लगा 7535, हाँ मतलब 5 से भी ऊपर है, हाँ। विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं की तुमने। ऐसा ही है। तो अब आपने क्या कर दिया इसके जरिए, इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि आपने दुनिया को अपना डिपेंडेंट बना लिया। दुनिया में कोई भी काम करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर रेट्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, वहां पे तो वो मास्क खुद से बनाएंगे तो उनको पड़ते ही वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वो $0.5 तक का पड़ रहा है, 30-40 रुपए का तो वो वैसे ही पड़ रहा है, वो कह रहे हैं 7 रुपए में ले लो मेरे से, उससे का क्या बनाया हम कॉस्ट डबल महंगा, कितना प्रॉफिट भी नहीं है इसमें, प्रॉफिट कमाएंगे $0.5 के ऊपर तो कहां से कहां चला जाएगा, मास्क की 100 रुपए का हो जाएगा ये काम, सही है। पाकिस्तान के अंदर क्या किया, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कहा कि भाई मास्क बना लिए, मास्क किसके कपड़े का बनाना शुरू कर दिया, वो किस, हाँ कॉटन मास्क का ही है। आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी गिरा दिया, आप लो क्वालिटी पे आ गए ना, जो थी वैसे ही लो थी। पहले सर्जिकल मास्क कौन सा वो हैवी ड्यूटी होता है, वो वैसे ही लो था, आपने उसको और ज्यादा लो क्वालिटी पे लिया। वैसे नूर भाई वो वाला भी बना रहे हैं, जो ग्रीन वाले हल्के वाले कपड़े में ना, पाकिस्तान में वो भी बन रहा है अब तो। अब आपने क्या किया कि हमने वैल्यू एडिशन तो करनी नहीं है, हमने क्या बोला कि कपड़े वाला मास्क ही लो, उसको ब्रांड बना दो, लोग को ब्रांड बना के बेच दिया। नहीं, ब्रांडों ने वो स्टार्ट कर दिया कपड़े वाले मास्क के ऊपर प्रिंटिंग करा के, बिल्कुल निशान लिखने में पता नहीं किस किस के। हर किसी ने अब भाई अगर मास्क के ऊपर प्रिंटिंग करवाए तुम सर्जिकल के ऊपर भी करा सकते थे, सस्ता करके बेच देते, 20 रुपए का बेच दो, नहीं। तो आपने प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, 5 टाइम्स आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना रखा है। तो आप जो कपड़े का बना के बेच रहे हो 100 रुपए की, कितने 100-150 का मास्क बेच रहे हो, तो वो कपड़े का है, उसकी कॉस्ट कितनी आती होगी, 10 रुपए आती होगी, आप 200 रुपए का बेच रहे हो, तो 20 टाइम्स प्रॉफिट आप कमा रहे हो, 10 to 20 टाइम्स प्रॉफिट। आपको पूरा नहीं पड़ता, आप क्यों नहीं पड़ता भाई, जब चाइना 7 रुपए में एक चीज बना सकता है, तो आप 10 रुपए की बना लो तो कम से कम वो यहाँ पे सपोर्ट तो करते हैं, आप वो चीज ही नहीं बनाते खुद। तो वो क्या कर रहा है, आपको अपने डिपेंडेंट बनाना है। आपके पास पूरी दुनिया के पास सबसे बड़ा जो मसला है वो ट्रेड डिपेंडेंसी हो गई चाइना की। हाँ बहुत बड़ी ट्रेड डिपेंडेंसी हो गई है। क्या हो गया ट्रेड डिपेंडेंसी की सबसे बड़ी मिसाल क्या है, पेंडेमिक हुआ। पेंडेमिक के अंदर हमने पढ़ा कि ऑयल जो था वो एकदम से ऑयल वॉर शुरू हो गई ना एक तरीके कि ऑयल जो था वो पूरा का पूरा जो है गिर गया और सब कुछ हो गया। वो क्यों हुआ? वो सिर्फ इसलिए हुआ कि
सिर्फ चाइना के अंदर इतनी बड़ी सप्लाई जाती थी सऊदी अरेबिया वगैरह की कि जब वो सप्लाई बंद हुई, सिर्फ चाइना से बंद हुआ जब, तो उनकी जो थी वो किस में चली गई, नेगेटिव में चली गई। हुआ है, उन्होंने कहा कि नहीं हम सप्लाई नहीं रोकेंगे। वो सप्लाई करते गए करते गए करते गए, फिर एग्रीमेंट हुआ जब जाके तो उसकी रुकी है, और वो जो प्राइसेस है वो स्टेबल हुई। फिर एग्रीमेंट किया, यूएस से बैठ के एग्रीमेंट करवाया कि नहीं भाई ये नहीं करो, नेगेटिव चली गई प्राइस। हिस्ट्री के अंदर आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मेरे ख्याल से पहली दफा हुआ था। बात क्लियर है ना? बिल्कुल। तो ये क्या है, आपको उससे अपना डिपेंडेंट बना दिया। उसकी इंपोर्ट के ऊपर दुनिया डिपेंडेंट है क्योंकि सबसे बड़ी सप्लाई, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स वहां पे, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन को सबसे बड़ा वहां है। ऑक्सफोर्ड के अंदर हर जगह के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं, जो बाहर के फॉरेनर्स आते हैं स्टडी करने, जो फॉरेन डायस्पोरा है, इट इज ऑफ चाइनीज। ऑक्सफोर्ड देख लें, कैम्ब्रिज देख लें, यहाँ पे बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो चाइनीज का है, वहां से फंडिंग है आपको, हर जगह डोमिनेट कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, क्या काम किया, उन्होंने कहा कि जो हमारी पॉपुलेशन है इट इज आवर स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ बना के यूज किया ना उन्होंने। दुनिया के हर जगह कॉन्टेक्ट की, हर जगह इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ उसकी एक चीज की कि भाई पॉपुलेशन जो आई वो वापस आई, उसने वो चेंज लेके आए। दैट चेंज टुक देम लाइक 30 इयर्स, 30-40 इयर्स चेंज लगा उनको, लेकिन स्टिल दे मैनेज टू डू इट ना। सही, बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे हम चलेगा, अब फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, कुछ सिस्टम की, ग्लोबल सिस्टम की बात करें। तो ग्लोबल सिस्टम क्या है बेसिकली? हाँ क्या है? ग्लोबल सिस्टम क्या कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं ग्लोबल सिस्टम क्या है? हाँ, ग्लोबल सिस्टम क्या है? भाई ये जो पूरा हमारा एनवायरनमेंट है, जो पूरा सब बना के बैठे हुए हैं हम, जितनी कंट्रीज का पूरा आपस के इंटरकनेक्टेड रिलेशंस वगैरह हैं, ट्रेड डिपेंडेंसीज वगैरह, आपने क्या लिखा था, रिसोर्सेज पूल वगैरह, ये सब सही, मिला के इन सब के जो आपस के इंटरेक्शन है। सही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्रीडोमिनेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है और बिलीफ है जो डिफाइन करता है मेजर वर्ल्ड कंडीशंस, जो ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करती है और उसकी नेचुरल एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक होगी? पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड बिलीफ्स दैट प्रिवेल, पूरी दुनिया में ये जो फैला हुआ, दैट प्रिवेल इंटरनेशनली, सही, दैट प्रिवेल इंटरनेशनली which affects major conditions, which affect major conditions which influence human and natural activity. सही, ह्यूमन और जो नेचुरल एक्टिविटीज हमारी हो रही है उसके अंदर उसका बहुत ही बड़ा किरदार है। ये हमारे पास एक ग्लोबल सिस्टम, हम लोग बोलते हैं ना, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज। तो यही जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर था कि जिसकी वजह से ऑयल वॉर शुरू होने में आ गई थी कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि मैं अपनी सप्लाई कट डाउन नहीं करूंगा, नेगेटिव सप्लाई पे आ गया, पूरी दुनिया मुतासिर हो गई ना। सही, सबने अपनी पॉलिसीज उसके हिसाब से बना ली। चाइना ने कहा कि मैं खरीद लेता हूँ, यूएस ने कहा कि मैं सस्ता खरीद लेता हूँ, लेकिन अफेक्ट क्या हुआ? यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी वो बंद होने लगी। क्यों? क्योंकि ये नेशनल एक्टिविटीज को भी इम्पैक्ट कर रहा है और ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इम्पैक्ट किया। अच्छा, एनार्की क्या होती है? एनार्की chaos, एनार्की होता है ना, एनार्की जो क्या कहलाती है? chaos ही को कहते हैं ना एनार्की के, मतलब कि पॉपुलेशन जो है जिसको स्टेट, बेसिकली स्टेट जो दिया हुआ है गवर्न कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह को मानना छोड़ दें, बोलने के भाई हम मैं आपसे ऐसा रूल नहीं कर रहे, सही, वो
जिस तरीके से उनके अंडर गवर्न हो रहे थे इजीली वो अनगवर्नेबल बन जाए तो आई थिंक ये एनार्की है। तो एनआरकी तो बेसिकली वही जो कंडक्ट करने के लिए होता है, उसको रूल करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो कि उनका रेगुलेट करता है कंडक्ट ना। हाँ सही है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आप पे इतनी पावर दी हुई है जो कि आपका कंडक्ट जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं एक स्टेट के अंदर। सही है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि साइकिल्स होते हैं इसके अंदर, रेपिटेटिव होते हैं, वो क्या है? क्या होते हैं? साइकिल्स, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं ना, रेपिटेटिव साइकिल्स होते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जब पेंडेमिक की बात हुई तो पेंडेमिक वाज एक्सपेक्टेड। जब अभी हम बात करते हाँ कहते हैं कि 100 साल का साइकिल है कि भाई। हाँ, तो साइकिल्स आर एक्सपेक्टेड। वॉर्स, साइकिल्स क्या है कि बिहेवियर पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ। वॉर्स के ऊपर बात की जाती है कि हर टेरिटरी जो है वो अपने हाँ कुछ अरसे बाद सबको जागता है, कुछ समझती है कि मैं बहुत फन्ने खान हो गई हूँ, वो लड़ने का मूड होता है, फिर लड़ाई करते हैं, पिटते हैं, पिटने के बाद फिर जाके चैन आता है। ठीक है, ठीक है, ये साइकिल्स एक्चुअली यूरोप ने बहुत ज्यादा देखे हैं। ये सबसे ज्यादा। अब हम बात करते हैं थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? ये थ्योरी कोई भी ख्याल, कोई भी वो के मतलब आप नहीं, तुम इस अपने बारे हिसाब से में। मुझे बताओ ना कि एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस तुम बोलते हो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ मैं, है ना। बिल्कुल हाइपोथेसिस क्या होता है? स्टेटमेंट होती है जिसको दैट कैन बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड। बिल्कुल अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड। सही है, उसके ऊपर तुमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जो भी ऑब्जर्वेशंस की, कुछ भी किया, उसके बाद जाके तुम एक नतीजे के ऊपर पहुंचते हो और उस नतीजे इन्फेरेंस की। को टेस्ट करके उसको क्या बोलते हो कि जो ज्यादा हो जाए तो वो थ्योरी हो गई। अगर वो कंडीशंस के अंदर प्रूफ हो जाए तो वो थ्योरी क्या बन जाती है? लॉ बन जाती है, वरना वो थ्योरी रहती है। लॉ वन। ठीक है ना। कुछ कंडीशंस में वो टेस्ट हो, जैसे डार्विन की थ्योरी है, लॉ नहीं है। सही। हाँ एवोल्यूशन थ्योरी सही है। रिलेटिविटी की थ्योरी, तो थ्योरी क्या है? सेट ऑफ हाइपोथेसिस that define the relationship between variables to explain or predict phenomena and make prescriptions about how positive changes can engineer, और जो भी इसके अंदर चीजें आ जाती है वो सब होगा। थ्योरी तो बात क्लियर है ना। इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। सही है, दो चीजों का बड़ा अक्सर जिक्र होगा इसके अंदर। एक होगी इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरीज का जिक्र होगा, और दूसरा हम लोग जिक्र करेंगे पैराडाइम्स का। अच्छा, पैराडाइम्स क्या चीज है? यार पैराडाइम को आप उस तरह से बेसिकली बिहेवियरल पैटर्न कह सकते हैं कि भाई के सब एक डगर पे चल रहे हैं, देन सडनली जहां पे पैटर्न चेंज करना शुरू कर रहे हैं वहां पे कहा जा सकता है कि भाई के नाउ पैराडाइम इज शिफ्टिंग। सही है। तो पैराडाइम बेसिकली क्या है? एक एग्जाम्पल है, एक मॉडल है ना, हम लोग ये कहेंगे। एक एग्जाम्पल है, एक मॉडल है, एक पर्टिकुलर एरा का भी एज एन एसेंशियल पैटर्न, एज एन एसेंशियल पैटर्न अबाउट एन एरिया ऑफ इंक्वायरी। किसी एरिया जो इंक्वायरी का होता है उसके ऊपर। एज एन एसेंशियल पैटर्न फॉर एन एरिया ऑफ इंक्वायरी। ओके सही। तो अब हम लोग आईआर के अंदर ना यही दो चीजें मेन डिस्कस करेंगे, एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, एक पैराडाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सही। अच्छा, पुराना देन काम सम किया जो मैंने तुम्हें दिया था, वो सब कुछ किया ही नहीं किया? क्या कह रहे हैं नूर भाई? जो मैंने होमवर्क दिया था कुछ किया? तुम्हें वो लिखने को कहा था, पता नहीं। नहीं नूर भाई हमें लिखने को कहा था, मैंने आपको बताया कि मैं नहीं लिख सका। ठीक है। कल तो मैं एक्चुअली पूरा गाड़ी के उसमें लगा रहा था, आज ऑफिस में इंशाल्लाह ताला मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा स्लैक दे दें, ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद, छुट्टियों के बाद। पेपर पैटर्न है बेसिकली यही है कि 20 मार्क्स है एमसीक्यूज है, 80 मार्क्स है थ्योरी है। फिर दूसरा जो पेपर है उसमें भी 20 मार्क्स एमसीक्यूज, 80 मार्क्स थ्योरी। अच्छा 80 मार्क्स में कोई पार्ट्स बनाए हुए हैं उन्होंने रिगार्डिंग सम थ्योरी